Hello students, welcome back to English Guru Solanki sir's class, and today's topic is Pride and Prejudice by Jane Austen. तो आज हम इस नॉवेल के बारे में बात करेंगे, प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन। तो चलिए देखते हैं पहले इनके मुख्य कैरेक्टर क्या है। मिस्टर बिंगले, अ क्वाइट सिंपल मैन। मिस्टर डार्सी, अ हीरो ऑफ द नॉवेल। Jane Bennet, Mr. Bennet, Mrs. Bennet, Miss Caroline Bingley, Lady Catherine de Bourgh, Aunt and Uncle Gardiner, Mary Bennet, Lydia Bennet, Kitty Bennet, George Bickham, Georgiana Darcy। तो ये कुछ हमारे मुख्य कलाकार हैं, मुख्य कैरेक्टर्स हैं। Now come to the summary of this novel, first in English. The story begins with Mr. Bingley moving into the most luxurious Netherfield Park mansion in the area, together with his sisters and their friend Darcy. Bingley is young, rich and single. It seems to like a perfect solution for the Bennet family, who have 5 single daughters and are preoccupied with getting them married to secure the financial well-being of their family. One day, Jane Bennet is invited over for dinner, but she becomes ill once she arrives. Elizabeth comes to Netherfield to take care of her sister. That's how the two couples, Jane and Mr. Bingley, and Elizabeth and Darcy, meet and develop an interest in each other. Later, Mr. Bingley and his sisters visit Bennet's mansion to invite them to the ball they are hosting. At the same time, Mr. Collins, Mr. Bennet's cousin and sole successor to the family estate, as there are no male heirs to the Bennet family. So, at the same time Mr. Collins comes to visit the family, he wrote a letter sometime before announcing his visit with the intention to choose one of the Bennet girls as his wife. He selfishly expects that all of them will want to marry him to get to keep their family mansion, and is surprised when Elizabeth turns down his proposal at the ball. After that, determined to find himself a wife, William Collins proposes to Charlotte Lucas, who agrees simply out of the social pressure to get married. The Bingley sisters realized that their brother might disgrace the whole family by marrying Jane, who is not of their class. They do everything they can to separate the couple and eventually make him move away to London. After some time, Jane and Elizabeth Bennet also arrive in London. While visiting her friend Charlotte, Elizabeth meets Darcy again. They re-engage in sharp dialogues. Darcy confesses that he loves Elizabeth and proposes to her, but does it in such a snobbish manner that Elizabeth turns him down. However, his act did not change the way she thinks about him, and the dislike she had for him changes into something more complex and deep. The next day, Darcy writes a long letter to Elizabeth in which he comes clean, sincerely explains why he interfered in the relationship between Jane and Mr. Bingley, which he sincerely regrets, and explains that the stories Mr. Bickham tells about him are lies. Elizabeth changes her attitude towards Darcy but does not initiate contact to tell him. The next time the lovebirds see each other is when Lizzie travels with her aunt and uncle to visit the Pemberley estate that belongs to Darcy. She hears people saying good things about him, and Darcy himself behaves quite gallantly around people. One day, Darcy sees Elizabeth in tears after she finds out that her younger sister Lydia had run away with Officer Wickham. Luckily for all, Uncle Gardiner was quickly able to find the lovers in London.
and pretty easily managed to convince the young man to marry the girl he had seduced. Only later, Elizabeth would realize that Beacom agreed to marry Lydia because Darcy had paid off all his debts. The story finishes with a happy ending when Mr. Bingley, along with the sisters and Darcy, come to Netherfield Park again. Darcy proposes to Elizabeth for the second time and she agrees, and they move into the pompous family house. Mr. Bingley marries Jane and the two live happily ever after. तो स्टूडेंट्स, ये कहानी थी हमारी जेन ऑस्टन के फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी लॉस एंजलिस टू ये कुछ पंजाब के प्लॉट से पंजाब टू लॉस एंजलिस ऐश्वर्या राय के ऊपर एक फिल्म बनी थी, मुझे अभी एक नाम नहीं याद आ रहा है। तो इसी नॉवल पर बेस्ड थी वो कहानी, जिसकी मुख्य कलाकार थी हमारी ऐश्वर्या राय। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा जेन ऑस्टन के नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस की समरी इंग्लिश में, और अब हम बात करेंगे इस नॉवल की कहानी का हिंदी में। और अब हम बात करेंगे इस नॉवल की कहानी के बारे में हिंदी में। चार्ल्स बिंगले नाम के एक धनी युवा सज्जन ने नेदरफील्ड पार्क की जागीर किराए पर ली थी, जिससे पास के गांव लॉन्गबर्न में विशेषकर बेनेट के घर में बहुत हलचल होती है। बेनेट की 5 अविवाहित बेटियां हैं, सबसे बड़ी से लेकर सबसे छोटी उम्र तक जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया। और श्रीमती बेनेट उन सभी को देखने के लिए बेताब है। श्रीमती बेनेट और श्री बिंगले बेनेट की श्री बिंगले के लिए एक सामाजिक यात्रा का भुगतान करने के बाद बेनेट एक प्रोग्राम में भाग लेते हैं जिस पर बिंगले मौजूद हैं। उसे जेन के साथ ले जाया जाता है और शाम का अधिकांश समय उसके साथ नाचने में बिताया जाता है। उनका करीबी दोस्त मिस्टर डार्सी शाम को कम प्रसन्न होता है और एलिजाबेथ के साथ डांस करने से इनकार कर देता है, जिससे हर कोई उसे घमंडी और अप्रिय लगने लगता है। हालांकि बाद में हफ्तों में सामाजिक कार्यों में डार्सी ने खुद को एलिजाबेथ के आकर्षण और बुद्धिमत्ता के प्रति तेजी से आकर्षित किया। बिंगले के साथ जेन की दोस्ती भी दफन होती रही और जेन बिंगले हवेली का दौरा करते हैं। घर की यात्रा पर एक मंदी सी फंस जाती है और बीमार हो जाती है, जिसके कारण कई दिनों तक नेदरफील्ड में रहती है। जेन के प्रति रुझान रखने के लिए एलिजाबेथ कीचड़ भरे खेतों से गुजरती है और एक बिखरी हुई पोशाक के साथ पहुंचती है, जो स्नोबिस मिस बिंगले चार्ल्स बिंगले की बहन के तिरस्कार के लिए बहुत कुछ है। मिस बिंगले का स्पाइट भी तभी बढ़ता है जब वो नोटिस करती हैं कि डार्सी, जिसका कि वो पीछा कर रही थी, एलिजाबेथ पर काफी ध्यान दे रहा है। जब एलिजाबेथ जेन घर लौटती हैं तो उन्हें मिस्टर कॉलिंस अपने घर ले जाते हैं। मिस्टर कॉलिंस एक युवा पादरी हैं जो मिस्टर बेनेट की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए खड़े हैं, जिसे फंसाया गया है, जिसका अर्थ है कि यह केवल पुरुष उत्तराधिकारियों को ही दिया जा सकता है। श्री कॉलिंस एक मूर्ख व्यक्ति हैं, हालांकि वो बेनेट लड़कियों द्वारा काफी रोमांचित हैं। उसके आने के कुछ समय बाद वो एलिजाबेथ से शादी का प्रस्ताव रखते हैं। वो उसे गर्व से घायल कर देती है। इस बीच बेनेट लड़कियों के पास के शहर में तैनात मिलिशिया अधिकारियों के साथ मित्रता हो गई है। उनमें से विकम एक सुंदर युवा सैनिक है जो एलिजाबेथ के प्रति अनुकूल है और उसे बताता है कि कैसे डार्सी क्रूरता ने उसे इस विरासत से बाहर धोखा दिया है। सर्दियों की शुरुआत में बिंगले और डार्सी नेदरफील्ड को छोड़ देते हैं और लंदन लौट जाते हैं, जो जेन के पतन के लिए बहुत कुछ है। इस खबर के साथ एक और झटका आया कि कॉलिंस एलिजाबेथ की सबसे अच्छी दोस्त और स्थानीय नाइट की गरीब बेटी शार्लोट लुकास से जुड़ गए हैं। शार्लोट एलिजाबेथ को समझाती है कि वो बड़ी हो रही है और फाइनेंशियल कारणों से
मैच की ज़रूरत है। शार्लोट और मिस्टर कॉलिंस की शादी हो जाती है और एलिजाबेथ उनके नए घर पर उनसे मिलने की लिए वादा करती है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, जेन दोस्तों को देखने के लिए शहर का दौरा करती है। उम्मीद है कि वो मिस्टर बिंगले को देख सके। हालांकि मिस बिंगले उससे मिलने जाती हैं और उसके साथ असभ्यता का व्यवहार करती है, जबकि मिस्टर बिंगले उससे मिलने में असफल रहते हैं। बेनेट लड़कियों के लिए शादी की संभावनाएं धूमिल दिखाई देती हैं। उस बसंत में एलिजाबेथ शार्लोट से मिलने जाती है, जो अब कॉलिंस के संरक्षण में लेडी कैथरीन डेवोर के घर में रहती है, जो डार्सी की चाची भी है। डार्सी लेडी कैथरीन को बुलाती है और एलिजाबेथ का सामना कराती है, जिसकी उपस्थिति में वो कॉलिंस के घर में कई यात्राओं पर जाती है, जहां वो रहती है। एक दिन वो शादी का चौंकाने वाला प्रस्ताव रखती है, जिसे एलिजाबेथ जल्दी मना कर देती है। वो डार्सी को बताती है कि वो उसे घमंडी और अप्रिय मानती है। फिर उसे बिंगले को जेन से दूर करने के और बीकम को निर्वस करने के लिए डांटती है। डार्सी उसे छोड़ देता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एक पत्र सौंपती है। इस पत्र में वो स्वीकार करती है कि उसने बिंगले से जेन से दूरी बनाने का आग्रह किया, लेकिन दावा है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि उनका रोमांस गंभीर नहीं है। विकम के लिए वो एलिजाबेथ को सूचित करता है कि वो एक युवा अधिकारी है और झूठा है, और उनकी असहमति का असली कारण विकम का अपनी युवा बहन जॉर्जियाई डार्सी के साथ काम करने का प्रयास था। इस पत्र के कारण एलिजाबेथ डार्सी के बारे में अपनी भावनाओं का पुनर्मूल्यांकन करती है। वो घर लौटती है और बिकम की ओर ठंडी सांस लेती हुई हरकत के बारे में विचार करती है। मिलिशिया शहर छोड़ रही है, जो युवा बल के पागल बेनेट लड़कियों को व्याकुल करता है। लीडा ब्राइटन में एक पुराने कर्नल के साथ गर्मी बिताने के लिए अपने पिता से अनुमति प्रदान करने का प्रबंधन करती है, जहां विकम की रेजिमेंट तैनात रहेगी। जून के आगमन के साथ एलिजाबेथ एक और यात्रा पर जाती है। इस बार गार्जियन के साथ, जो बेनेट्स के रिश्तेदार हैं। यात्रा उसे उत्तर की ओर ले जाती है और अंततः पैम्बले के पड़ोस में डार्सी की संपत्ति में वो पैम्बले का दौरा करती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि डार्सी दूर है, और डार्सी के सेवकों से सुनते हुए भवन और मैदान में प्रसन्न होते हुए घूमती है कि एक अद्भुत उदार गुरु है। अचानक डार्सी आता है और उसके सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है। अपने प्रस्ताव का कोई उल्लेख न करते हुए वह गार्जियंस का मनोरंजन करता है और एलिजाबेथ को अपनी बहन से मिलने के लिए इनवाइट करता है। इसके तुरंत बाद एक पत्र घर से आता है, एलिजाबेथ को बताते हुए कि लीडिया ने बिकम के साथ कोहनी मारी है और ये युगल कहीं नहीं पाया गया है, यानी कि वो भाग गए। इस तरह की स्थिति से घबराकर एलिजाबेथ ने अपने पूरे परिवार को घर पर पाला। मिस्टर गार्डिनर और मिस्टर बेनेट लीडिया की खोज करने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन मिस्टर बेनेट अंततः खाली हाथ घर लौटते हैं। जबकि सभी आशा खो जाती हैं, तो गार्डिनर का एक पत्र आता है जिसमें लिखा होता है कि दोनों युवा मिल गए हैं और बिकम वार्षिक आय के बदले में लीडिया से शादी करने के लिए सहमत हो गया है। बेनेट को विश्वास है कि गार्डिनर ने बिकम को भुगतान किया है, लेकिन एलिजाबेथ को पता है कि पैसे का स्रोत और उसके परिवार का उद्धार डार्सी के अलावा और कोई नहीं था। अब विवाहित बिकम और लीडिया संक्षेप में लॉन्गबोर्न लौट जाते हैं, जहां बेनेट उनके साथ ठंडे व्यवहार करते हैं, यानी कि नरमी से पेश आते हैं। फिर इंग्लैंड के उत्तर में बिकम के नए कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं। इसके तुरंत बाद बिंगले नेदरफील्ड में लौट आता है और जेन की अपनी प्रेमालाप शुरू हो जाता है।
डार्सी उसके साथ रहने के लिए जाता है और बेनेट के दौरे का भुगतान करता है, लेकिन एलिजाबेथ से शादी करने की इच्छा का कोई उल्लेख नहीं करता है। दूसरी ओर बिंगले ने अपना मुकदमा दबाया और जेन को प्रस्ताव दिया, लेकिन सभी की खुशी के लिए बिंगले की घृणित बहन जबकि परिवार मनाता है कि लेडी कैथरीन डे बोर्गलॉन्गबोर्न की यात्रा का भुगतान करती हैं, वो एलिजाबेथ को कोसती हैं और कहती हैं कि उसने सुना है कि डार्सी उसका भतीजा उससे शादी करने की योजना बना रहा है। चूंकि वो बेनेट को डार्सी के लिए अनुपयुक्त मैच मानती हैं, लेकिन कैथरीन मांग करती हैं कि एलिजाबेथ उसे मना करने का वादा करेगी। एलिजाबेथ ने उत्साही रूप से मना करते हुए कहा कि वो डार्सी से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन वो अपनी खुशी के खिलाफ कुछ भी वादा नहीं करेंगी। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ और डार्सी एक साथ बाहर घूमने जाते हैं और उसे बताते हैं कि बसंत के बाद उसकी भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आया है। वो अपने प्रस्ताव का स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है और जेन और एलिजाबेथ दोनों शादी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन का, जिसके बारे में आपने जाना हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। अब आपको एग्जामिनेशन के लिए 4 तरह के क्वेश्चंस को तैयार करना है: लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस। इस तरह से आपका ये नॉवेल कंप्लीट होता है। सोलंकी सर के चैनल इंग्लिश गुरु को यूट्यूब पे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पढ़ते रहिए ऐसे ही लगातार इंग्लिश गुरु के साथ। हम मिलेंगे अगली क्लास।